Good evening, everyone. Please join us for tea. It's right behind the hall. Aman, ठीक है. There's one extra chair. भैया, हाँ जी, हमें सीधा रखना मैम, नहीं तो ऑडियो में फ़र्क पड़ जाएगा आपका। वो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो ठीक नहीं आएगा। ऐसे झुकाना हो ये नीचे कर लीजिए, उठाना हो ये ऊपर कर लीजिए। Good evening, everyone. I request you all to move outside for tea, please.
Good evening, everyone. May I please invite all our esteemed panelists to please come on stage. How are you? Good to see you. Mohsina, this book is not me. Good evening, everyone. On behalf of HarperCollins India, I welcome you all to this evening's launch of Mrs. Mohsina Kidwaiji's memoir, My Life in Indian Politics. Before we commence with the evening's program, I would like to briefly introduce the book to you because the author truly does not need an introduction. As we all know, has been in public life as a member and leader of the Indian National Congress for over 6 decades. She's been a member of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and has served as Union Cabinet Minister in several ministries, including health and family welfare, transport, urban development, and tourism. Mohsina ji has had a ringside view of Indian politics for almost the entire span of independent India. She has witnessed and been a participant in the tenures of several prime ministers and was a member of parliament until 2016, one of only 20 Muslim women to have been elected to the Lok Sabha since 1951. This book is a candid account of her life in which she analyzes her own contribution to the country's politics and also provides us with an honest appraisal of the turmoil and transitions she has been a witness to. Written with the honesty and simplicity that have been her trademark in public life, this then is not just the memoir of a politician. It is an assessment of an entire era in Indian politics, and we at HarperCollins are delighted to have published it. The book has been co-authored by Mr. Rashid Kidwai, who we all know as a journalist, columnist, political analyst, and author of several best-selling books. I now request our esteemed panelists to kindly release the book formally and unveil it.
I now request Sumitra Chaudhary, political editor of the Hindustan Times and our moderator for the evening, to please take over the proceedings. Thank you, Swati. I'm really happy to be here. First of all, seeing so many familiar faces. And I just wanted to start by saying that when I first started covering politics and the Congress Party, I went, of course, to see Mohsina ji, who was a general secretary at that time. And I just want to say that she was the most difficult person for a reporter to crack. She wouldn't give out any details about anything they were doing. And that's why this book is fascinating as well, because for someone, all of us who want an insight peek, a perspective on how it was for, at a different period. And I think what's really relevant about this book is Mohsina ji is known for that period, and she's made a mark in the Congress Party by winning an election when the Congress was really down and out. And she's and they came out. So it's interesting, and I would like to hear from a lot of the panelists over here as well, whether there are any parallels between the time now and the post-emergency period about Congress's setbacks, and whether, like, they overcame at that time. Of course, they overcame in a much shorter space at that time. So is that kind of a comeback possible at all? And I think this book gives that perspective of someone who is a loyalist, someone who's inside there, who's really seen it all, and we get that with all those, perspective as well. What's of course interesting is that just like she didn't give away any details to me, this book also is not controversial in any way. So she says it all without creating controversy. Ma'am, may I first ask you to begin to just tell everyone a little bit more about your book and your writing? Thank you. वे हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं, हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, शिंदे साहब, हमारे शिवराज पाटिल जी जो रिलीज़ जिन्होंने किया, और शशि थरूर जी, शिंदे जी, और जितने भी डायस पे इस वक्त बैठे हुए हैं और जिन्होंने मेरे लिए कुछ कहा, जो मेरी इसका फंक्शन को कंडक्ट कर रही हैं, मैं आप सबका और ख़ास तौर से अपने जितने भी नीचे बैठे हुए मेहमान साहिबान हैं, मैं उन सबका फ़र्दन ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी दूर दूर से आए और मेरी बुक रिलीज़ के लिए के फंक्शन में आप लोग आए। मैं वाक़या है कि मैं दिल से आप सबकी मशकूर हूँ, बेहद ममनून मशकूर हूँ, बेहद आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक एक को जिसको भी मैंने बुलाया, आप सब बड़ी खुशी आए, मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी तीनों बेटियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने तीनों दामादों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरी किताब में पूरी तरह से मेरा साथ दिया और हर तरह की मदद उन लोगों ने मेरी की। मैं उन सब बच्चों का भी अपने शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस किताब में जैसा भी आपको बता रही थी कि इसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि जो कंट्रोवर्सी हो जिसमें क्योंकि मेरी आदत ही नहीं, मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ या किसी की जितनी बातें मैंने इसमें लिखी हैं वो बिल्कुल सच्चाई के साथ मैंने लिखी हैं। जो मैंने देखा और जो मेरे ऊपर गुज़री और जो मैंने फेस किया वो सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम सब चाहें, हम चाहे किसी पेशे में हों, चाहे हम पॉलिटिक्स में हों, चाहे हम सरकारी ओहदे पे हों, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे कुछ भी हों, लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि हमको एक स्टैंडर्ड के साथ पॉलिटिक्स करनी है या जो भी जिस भी काम में है वो करना है, तो मैं समझती हूँ कि हमें कोई रोक नहीं सकता। और उसके ज़रिए अगर उसके साथ एक ये बात है कि हमारी नीति होना चाहिए, नीयत साफ़ होना, इंटेंशन बहुत सही होना चाहिए, और उसके साथ हमें हमारा डेडिकेशन डिवोशन अपनी
जिस काम में हम लगे उसके साथ होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ फिर ना हमें कोई तरक्की करने से रोक सकता है, ना हमें कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसमें हम सब कोशिश करें तो हम एक स्टैंडर्ड पे रह के अपनी सब काम कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आज जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेशा हो, हर एक का उसमें नज़र आता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती कि कोई जानबूझ के ऐसा करता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा डिवोशन और डेडिकेशन हो और हमारी नीयत बिल्कुल साफ हो कि हम नेक नियति के साथ वो काम कर रहे हैं, हम उसमें कोई किसी किस्म की हमारी नीयत ख़राब नहीं है। तो मैं समझती हूँ विद गुड इंटेंशन अगर हम अपना काम करते रहेंगे तो हमें ना आगे बढ़ने से कोई रोकेगा और ना हमें मैं ख़ास तौर से आज के दिन मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहती हूँ और मुझे राजीव जी याद आते हैं। उन्होंने जब 18 बरस की उम्र की बच्चों की देने के लिए वोटिंग राइट, तो हम सब उसके ख़िलाफ़ थे। हम लोग सभी कह रहे थे कि बहुत खिलंदड़ी उम्र होती है, नौजवानों को अभी ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, जो उनका जवाब था उससे हम लोगों ने फिर आगे नहीं हम बढ़े। हमने जब उन्होंने कहा तो उनका भाई मैं समझता हूँ कुछ बच्चे बहक सकते हैं, मैं ये भी समझता हूँ कुछ इधर डगमगा सकते हैं, लेकिन भाई कोई वक्त तो ऐसा आएगा, कोई वक्त तो ऐसा आएगा उन नौजवानों के लिए जब नौजवानों को ये एहसास होगा कि अब देश की जिम्मेदारी उनकी है, देश चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा संदेश था जो राजीव जी ने दिया और हम लोग उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो ही इस देश को संभालने वाला है, वही इस देश का कर्णधार बनने वाला है, वही इस देश को आगे ले जाने वाला है। जितने ख्वाब हम लोगों ने देखे थे उन सब को पूरा करने वाला इस देश का नौजवान है। इसलिए उस देश के नौजवान को आज अपनी जिम्मेदारी का एहसास इस देश के लिए होना चाहिए। मैं इतना ही अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहती हूँ कि वो ध्यान करें और ये सोचें और ये समझें कि आज देश चलाना उनकी जिम्मेदारी है, आगे आने वाली है उनकी जिम्मेदारी। ये कह के मैं आप सबका बहुत फिर से इस्तकबाल करती हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। Thank you, Mohsina ji. And with that, I just want to go across to my first panelist, Dr. Shashi Tharoor, who in some ways we all know him as a very prolific writer. I think we are covering his book launches very frequently, and they're all very popular books as well. But of course, you're really in the thick of news, and part of the reason I was very excited to moderate this is because you're really the man of the moment right now. And what's amazing is that, for those who have been out of the country or switched off from news, I'm of course referring to the fact that Dr. Shashi Tharoor fought the Congress election, Congress presidential election, and has done really well, managed to procure 13% of the vote share. And this despite all of us, most people writing him off. And while the Congress party maintains that there was no one who was the official candidate, we thought different anyway. It looked different. So I wanted to ask you to look at and address in your opening remarks, perhaps address the fact that Mohsina Kidwai ji represented a different era of the Congress party. You, of course, challenged the status quo. And, you felt the need for things to change, to, shake things up, because you see where the future is. Obviously, that resonates. But is that something, what you're saying makes sense to a lot of people, but that change perhaps, what the results show is that the change isn't coming quick enough. Now, does that make you a little disheartened? Are you disappointed? Or how are you seeing your future in the party? I thought we were here to talk about Mohsina ji's book. She's the woman of the moment. And let me say a few words about her book, and I'll try and address what Sunetra has to say. But I do want to say it's a great honor to be present on the same podium as Mohsina Kidwai, Farooq Abdullah Saab, Shinde Saab, Shivraj Patil Saab, Mani Shankaraya.
and of course, two reputed writers and journalists, in Rashid Kidwai and Sunetra Chaudhary. And I just wanted to say that for me, this is a commitment that I made to a lady I've known and admired very much, and I really am here for her. So, Sunetra, despite your trying to lead me in a different direction, let me just say that their presence here itself is a reflection of the fact that Mohsina Kidwai is one of the Congress Party's most senior and distinguished leaders. And it's really striking for the young people she referred to recall that she actually began her involvement with public life by winning election to the UP legislature in 1960 at the age of 28. And then she went on to dedicate the rest of her life to politics and public service. So becoming a member of the State Assembly, then the Lok Sabha, you've already heard this in the introduction from the publisher, her senior cabinet positions under Indira Gandhi and later Rajiv Gandhi. And of course, she worked at every level in the party. And she sat in the Rajya Sabha till well into her 80s. And her age was not any barrier to her commitment and her active involvement in public service. And I think now in her 90th year, we're honored that we have a book from her that looks back on those incredibly important years. So this book recounts her personal life as well as her fascinating career. And you know, from her early years in Barabanki to the scrappy battles of local politics to the corridors of power, it's typical of her that she doesn't get into anything controversial, as she puts it. But even if it's not controversial, it's very interesting. And that's why I thought the book was very strongly worth recommending, even though I got to know Mohsina ji rather late in her political career, at the belated start of my own. When I first joined the Congress and became a candidate in the 2009 elections, she was my General Secretary, as General Secretary for Kerala. And so I had a great deal to do with her at that time, and really found that her gentle, soft-spoken manner reflected both her decency and her determination to ensure that the right results were achieved. All through her memoir, you can see these qualities. You know, the themes that consistently characterize Mohsina Kidwai's work are her humility, her dedication, her integrity, and a very fierce determination to do the right thing. That's right there in everything she talks about in her book. Her identities are manifold. She's a staunch congresswoman. She's a loving mother of 3 daughters, and I just saw a loving grandmother as well. She's a proud Muslim, and above all, I think, an Indian dedicated to the well-being of our country. And these are the qualities that I've always admired in her, and I was particularly honored, since Sunetra brought up the question of my seemingly quixotic quest for what was not to be. I was very honored when Mohsina Kidwai ji was one of the very, very few senior leaders who consented to sign my nomination paper for that post. And it's a reflection of all these qualities. She did not wish there to be any controversy. At the same time, since the party had made it very clear that this was an election open to everyone, she wanted there to be a fair contest, and she was happy to support me. And I have been very grateful for the principle and the commitment that she's shown throughout. Now, Rashid Kidwai, who's co-authored the book, writes in his introduction to the book that Mohsina Kidwai's career was marked by the fact that she was, and I'm quoting Rashid here, never shy of speaking her mind or sharing her candid thoughts. And I think this is an admirable quality in an autobiography, and so it shines through very clearly in the book. She does express herself directly, without rudeness, of course, or cant, but she assesses things as they really were, that's really a gift to the reader, in my view, and was undoubtedly an important part of her success in the party as well. You know, when I worked with her, and she was Congress General Secretary in charge of Kerala, you could see a very quick grasp of issues, her responsiveness. I mean, if she wasn't at the other end of the phone when you called, she was back to you very, very quickly. And as a result, her effectiveness. So it was very easy to see why she was held in such enormous respect by her colleagues, and in a state so far away from her own. I mean, really the opposite end of the country. The trust she enjoyed from the party president, at that time referring to Sonia Gandhi, contributed immeasurably to her clout and effectiveness as well. And as Rashid notes in his comments on this book, her assessment of the Congress party has always been very clear-eyed, and her approach
was never complacent. There was a certain restlessness to her approach. She was always seeking to improve the party's prospects. And that made the party truly her natural home. Her commitment to Nehruvian values, to Gandhian philosophy is unwavering. This has colored her approach. You can see it in everything in the book: policy, ideology, religion, life at large. And as she drew so much inspiration from those who served before her, I would like to say that I'm one of those who really draw inspiration from her career of work and service and the manner in which she conducted it. I think all of us who are following in her remarkable footsteps know that she represents a certain generation which probably was the best of what the Congress had to offer, and all of us have much to do to be worthy of the legacy she has left us. Let me say, since Sunetra mentioned I am after all a writer, that she, Mohsina Kidwai, as an author, with Rashid's help no doubt, writes with both passion and clarity, lots of memorable detail. The decades of the front line of politics are all there, and at the same time you can see her unwavering commitment to democracy, to freedom, to the politics of inclusivity. And at the same time, the memoir is in many ways moving, sometimes funny, and entertaining, and always intriguing. It's really a treat for any of us who follow Indian politics, and I do want to say it's a fitting marker, Mohsina ji, of your long and dedicated career and of the legacy that you have bequeathed to all of us in Indian politics, a legacy of principled service, of visionary selflessness, and all-embracing tolerance. I really am pleased to recommend it to all of you. And I know you'll think I ducked Sunetra's question, so I'll briefly say, no, I'm not disappointed, because I think it was very clear from the earliest moments of the campaign that the establishment, minus the rare case of a Mohsina Kidwai or a Saifuddin Soz or a few other of my fellow MPs, was going to rally behind its own. And that inevitably happened, and I have no complaints about that. In fact, Sonia ji and I were talking today about the election, and she was saying it's not surprising that people would sort of back sort of one of their own. And I said, absolutely, I wasn't surprised. So I will say to you that I think I was gratified by the extent to which the entire process galvanized our party on both sides and galvanized our workers. I had tremendous, I've now made new relationships with our party workers all over the country. That I would never have had a chance to without this election campaign. And I feel that many of them have touched me, and I have touched them in ways that I hope will have a lasting value in our respective political innings in the party. So I'm very pleased about all of that, and I think that there's a lot to be learned in a positive sense from having an exercise like this. I was quite amused to see our ruling party spokespeople attacking the Congress for the mistreatment of me. To which I responded that we can fight our own internal battles, thank you, but you try and hold one of your own elections first before you comment on ours. So I'll leave it there for now. Thank you very much. Thank you, Shashi Tharoor, for that and answering that part of the question as well. Shivraj Patilji, who is, of course, our former Home Minister, and he was, of course, Home Minister during UPA 1, a very critical time. And so, sir, I would like you to speak next. And what I thought would be interesting to hear from is that one of the things that Mohsina ji writes about in her book is the fact that she mentions the fact that, at that time, and I think Swati mentioned right in the beginning that she's one of the only 20, and I found that statistic to be shocking, that there have only been 20 Muslim women MPs since independence. And she talks about the fact that she used to host iftar parties. Now, I just want you to comment a little bit about the changing landscape of the country since Mohsina ji was there and you were very active in the Congress party and you were in government. And now, when we don't have official iftar parties anymore, so how has the landscape changed and how has that impacted your party, the Congress? I was told
that the first person to speak would be Dr. Shashi Tharoor, and the second person, Sri Mani Shankar Iyer, and the third person, Sushil Kumar Sinde, and then myself. The order has changed. Order had changed. I was expecting that I would like to hear Mani Shankar Ji Iyer, who has been a member of the parliament, and we had the opportunity of hearing him. We heard the speech delivered by my colleague sitting just on this side, a very beautiful speech, and the same kind of speech I wanted to hear from Mani Shankar Ji Iyer, Sushil Kumar Ji, so that I would not be required to speak more. असल में शुरुआत जो की है मोहसिना किडवाई जी ने, वो हिंदी में की है और बहुत अच्छा किया है, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी में कहेंगे आप या उर्दू में भी कह सकते हैं आप। ये किताब इतनी अच्छी है, अच्छी लिखी गई है, मैंने फिर ये मंगा के ये लिखा है और मैंने ये पढ़ ली है, और इतने जगह पर मुझे अंडरलाइन करना पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है, इसको ये याद रखना चाहिए। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, ऐसा मुझे लगता है। और आज का दिन भी बहुत अहमियत रखने वाला दिन है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन हुआ और शशि थरूर जी और दूसरे हमारे खंडेलवाल जी ये इलेक्शन पर खड़े हो गए, और किस तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इन्होंने इलेक्शन में किसी भी एक दूसरों के खिलाफ ऐसी कोई गलत बात नहीं कही गई है, और चुनाव होने के बाद खंडेलवाल जी चुनकर आने के बाद भी शशि थरूर जी उनसे मिले और ये बताया कि एक दूसरों के खिलाफ जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो एक दूसरों को दुश्मन समझ के नहीं लड़ा जा सकता, मगर विचार में कोई फर्क है तो ये अंतर है, ये कहा जा सकता है। ये बहुत अहमियत रखने वाली चीज है। और आज इस किताब के अंदर मैंने जब पढ़ा और मैंने इतना अंडरलाइन किया है उसके अंदर, और मुझे लगा कि यही विचार इस किताब के अंदर भी लिखा गया हुआ है। और शशि थरूर जी ने कह दिया कि इस किताब के अंदर किसी के खिलाफ कुछ भी लिखा गया हुआ नहीं है, यह अहमियत रखता है। आजकल इलेक्शन तो बहुत हो रहे हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है, जिला परिषद का होता है, पंचायत समिति का होता है, कॉरपोरेशन का होता है, म्यूनसिपैलिटी का होता है, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी होता है। मन इन इलेक्शन के अंदर कभी कभी हम सब लोग थोड़ी सी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। फिलॉसफी पर, पॉलिसी पर बोलने के बजाय हम एक दूसरे के जीवन पर ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरों के अच्छे बातों के बारे में भी कितना कहते हैं, इसके बारे में हमारे मन में शंका आ जाती है। एक दूसरों की गलतियां क्या हैं, उनमें क्या क्या खराब चीज की है, ये बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा न इस किताब में है, ऐसा शशि थरूर जी ने अपने भाषण में बोला है, और ना इलेक्शन के अंदर। करबे साहब को मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और उनकी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लगकर है, और वो कैसे हैं
और किस प्रकार से काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। और शशि थरूर जी जो हैं वो वहाँ से यूनाइटेड नेशंस में काम करके यहाँ पर आए और उनके भाषण सुनने के लिए हमारी इच्छा होती थी, हम पार्लियामेंट में आते थे और उनके साथ वो भाषण सुनते थे। और आज का भाषण सुनने के बाद भी वो हम कह सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को अपने भाषण के पहले वक्त इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना चाहूँगा। अगर डेमोक्रेसी को बड़ा बना के रखना है तो उसके अंदर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना है तो उसमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और डेमोक्रेसी को अगर आगे बढ़ना है तो व्यक्तिगत रूप से ज्यादा आपकी नीति क्या है, आपका धोरण क्या है, आपका विचार क्या है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के दिमाग में एक ही बात प्रकार की आ जाएगी। अलग अलग विचार भी हो सकते हैं। कभी एक का विचार बहुत करेक्ट लगता है तो कभी दूसरे का विचार भी करेक्ट लग सकता है। ये हो सकता है, ये होना बहुत ही जरूरी है। मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मोहसिना जी को मैंने पार्लियामेंट में चुन के आने के बाद ही मिला, उसके पहले मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मगर आने के बाद उन्होंने इस प्रकार से हमारे से बात की, नए चुनकर आए हुए लोगों से, और खास करके मेरे से भी, कि मुझे लगा कि एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को समझना चाहती है और बोलना भी चाहती है कुछ। और मुझ में और उनमें थोड़ा सा अंतर भी है उम्र में। मैं 87 इयर्स का हूं, वो 90 इयर्स के आगे हैं। मैं उनको बड़ी बहन समझकर बोल सकता हूं। तो इस किताब के अंदर ऐसी चीज है कि अगर आप इंसानियत के तरफ से एक दूसरों के ओर देखें तो एक दूसरों को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अपने विचार के अंदर कुछ अंतर है तो ये अंतर है ऐसा हमें लगता है, इतना बोल दिए तो आपने अपना काम पार्लियामेंट में ही अच्छा किया और पार्लियामेंट के बाहर भी अच्छा किया और इलेक्शन में भी अच्छा किया, ऐसा कह सकते हैं। खरगे साहब ने और थरूर साहब ने जो बताया है वो उसी तत्व के ऊपर किए बताया है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं खरगे साहब का वोटर हूं, मैंने उनको वोट दिया है। मैं अब बाद में इलेक्शन में बोल सकता हूं, मगर इनकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने भी इस प्रकार से अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमारे पार्टी को, हमारे देश को और पूरे संसार के लोगों के बारे में भी ये चीज अहमियत रखने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। मोहसिना जी ने क्या लिखा है किताब के अंदर, ये बताया है यहां पर। उन्होंने खुद के बारे में लिखा है कि किस उम्र में वो यूपी के कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन के रूप में आई वगैरह वगैरह, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें वो चुन के भी आए, मिनिस्टर भी बनी, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में भी आई और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनी और कैबिनेट्स की मिनिस्टर भी बनी, और उन्होंने किस प्रकार से काम किया ये बताया है। मगर अपने खुद की कभी तारीफ करने की कोशिश इस किताब के अंदर मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली, और ये भी बहुत अहमियत की चीज है। और उन्होंने इस किताब के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा है तो अपने बेटियों के बारे में लिखा है। उनकी एक बेटी की मेरी आज मुलाकात यहां पर हुई, उन्होंने बताया
कि मैं मोहसिना जी की लड़की हूँ। तो तीनों हैं। तीनों भी हैं, मगर मेरी मुलाकात एक से हुई, उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने, मगर उन्होंने उनके बारे में लिखा है। उसके बाद उनके जो दामाद थे उनके बारे में भी ज्यादा लिखा है, और सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में लिखा है तो वो इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, और वो अपने फादर इन लॉ के बारे में लिखा है। यानी ये बताता है कि उनका दृष्टिकोण पॉलिटिक्स में आने के बाद किस प्रकार से बर्ताव करने का था और है आज भी। यहां पर भी बुलाया है तो हम सब लोगों को बुलाया है। हमारे सारे लोगों के एक जैसे विचार होंगे ऐसा नहीं है, दुश्मनी के विचार तो जरूर नहीं है, मगर एक दूसरों के जैसे विचार में कोई अंतर हो सकता है, और वो है भी, और वो रहना कोई बुरी बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक विचार एक समय में सही लगता है और सही शरीक हो जाता है, और दूसरे वक्त में दूसरा विचार सही शरीक हो जाता है। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम हमारे धर्म को मानते हैं, मगर दूसरा धर्म भी हमारे धर्म के जैसा ही है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ये बहुत अहम चीज है। आज के इन दिनों के अंदर ये जो बात आती है वो बहुत है। अब संसार के अंदर अब शांति चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अब क्या तीसरा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या होगा, इसका सब लोग विचार कर रहे हैं। और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर बम के मदद से हो गया तो उसका क्या परिणाम होगा, इसका भी विचार करना बहुत जरूरी है। तो ये भी विचार उन्होंने लिखा है। इन्होंने इस किताब के अंदर सारे प्राइम मिनिस्टर की बातें लिखी हुई है। और इंदिरा जी के बारे में तो उन्होंने बहुत 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 लिखा है। वही है। हाँ, बहुत लिखा है उन्होंने। और राजीव जी के बारे में भी बहुत लिखा है उन्होंने। और उसके बाद दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी लिखा है, मगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बात नहीं लिखी है और ऐसी बात नहीं लिखी है जिसकी वजह से उनका कोई अपमान हो सके। ये जो चीज है बहुत बहुत अहमियत है। और इसके बाद
उन्होंने जिन व्यक्तियों के बारे में लिखा है, वो व्यक्ति में सबसे पहले सोनिया गांधी जी के बारे में लिखा, और उसके बाद जो है दूसरे लोगों के बारे में लिखा है। नटवर सिंह जी के बारे में भी लिखा है, और मुलायम सिंह जी के बारे में लिखा है। सोनिया गांधी जी के बारे में पहले लिखा है, और मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी लिखा है। उनकी मोहसिना किडवाई जी से कुछ अगर समझना है तो ये समझना है कि धर्म के बारे में इस प्रकार के सोचना चाहिए कि सब लोगों के अंदर जो गलत विचार है वो निकल जाए, वो सोचने चाहिए। और दूसरी बात जो लिखी है, डेमोक्रेसी में उनका विश्वास है, धर्म के अंदर उनका विश्वास है, मगर दूसरे धर्म के बारे में गलत खिलाफ उसके अंदर नहीं है, ये भी उन्होंने लिखा है। और तीसरी बात जो लिखी है वो लिखी है सोशलिज्म की। आजकल सोशलिज्म के बारे में बोलने के लोग बहुत डरते भी हैं। वो बोलते हैं कि सोशलिज्म से प्रश्न हल नहीं होने वाला है, मगर इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पक्ष क्या है, तो अपने आंखों से गिरी हुई ये जो आंसू हैं वही कांग्रेस पक्ष की फिलॉसफी के पीछे की बात है। यानी जिसको मदद करने की जरूरत है वो मदद वो करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में तालियां कम बजी है, ज्यादा बजती था। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये किताब बहुत बहुत अच्छी है। आई वुड रिक्वेस्ट not Mohsina ji alone, but other friends also. Please translate this book in Urdu, Hindi, and many other languages, and make it available to all the people to read this book in English, in Urdu, in Hindi, and many other languages, and understand what she is trying to say. And Thank you, Shivraj ji. she is. Now this is exactly what I wanted to. So Thank you. if you had allowed all my friends over there, No, they will. They will. I Yeah, would as have- soon as I would you. have completed my speech within very, very short time. Now that you have asked me openly, I completed, and I congratulate Madam for you for writing this beautiful book and giving us the opportunity to come and say a few things here. Thank you so much. Thank you, sir. In a panel that's full of congressmen and women, Dr. Farooq Abdullah, You had said that. Yes. Let me. You had asked me. I don't know whether you were thinking that I am sitting here only as a Congress member or what. You know, it is not only the Muslim ladies who are not in the parliament. It is ladies are not in the parliament. yeah. And once a discussion took place in the parliament on this topic only, they said why the ladies are not in enough number in parliament. 8% of the ladies. in Right the now it's parliament. about 14%. 14%. Yeah. Now 14% and 8% when the population is 50%. Yes. Now this kind of thing is required, and I think we have taken a decision outside the parliament that the ladies should be allowed to come to the parliament and other places also, state legislature and other places also in bigger number, and that is not happening. Yes, sir. And that has to be done not only by the elected members, but by all gentlemen also, who should also say, yes, our family members, lady family members, mothers, sisters, daughters, wives, they should also get enough numbers. Sure. And Thank you, only sir. then it is possible. Thank you. Dr. Abdullah, if you could speak a little bit about how you, as as someone standing out over here, seeing the Congress through the years, as so closely, what are your observations of the difference that the party has seen from the time Mohsina ji was there and now? Madam Editor, Mohsina Behan,
मेरे साथी भाई जो स्टेज पे हैं और आप सब, माइक जरा नजदीक कीजिए, बिल्कुल नजदीक है, अब इससे नजदीक तो हो नहीं सकता। बहन ने किताब बहुत शानदार लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हें किसी के खिलाफ नहीं लिखा, मगर किताबें बिकती नहीं हैं जब तक उसमें कोई मसाला ना हो। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आजकल दुनिया मसाले पे जिंदा है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस किताब को पढ़ने से लगी, लॉयल्टी टू द पार्टी एंड लॉयल्टी टू द लीडर। कितना ही इन्होंने छुपा दिया होगा, कभी कभी उनके दिल में भी मुश्किलें देखी होंगी, मगर बर्दाश्त किया। आजकल बर्दाश्त का मादा जो है वो खत्म हो गया है। इंसान जल्दी कुर्सी पर बैठना चाहता है, उसे काबिल हो या नहीं हो वो तो अलग बात है। इन्हें लिखा है कैसे ये तशरीफ लाई पार्टी में, ये भी लिखा जब पंडित जवाहरलाल जी से इनके फादर इन लॉ मिलाने गए और जवाहरलाल ने कहा कि इनको कब जमात में ला रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया ये तो इनकी शादी तो अभी हुई है, अभी तो कुछ वक्त दीजिए। क्या पता उस वक्त उन्हें कि एक दिन आएगा जबकि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता होंगी। उतार चढ़ाव इस जमात में आए और आएंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस किताब में लगी, कि इस जमात में या किसी जमात में आने के बाद बच्चे सफर करते हैं। इनकी छोटी बेटी जब ये घर से निकलती थी तो उनको वो चिल्लाती थी। मुझे भी याद है जब मुझे वालिद ने कहा कि तुम अब इस पार्टी पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो याद रखना बेटा, ये एक दरिया है जिसमें एक दफा तुम कूद जाओ तो इस दरिया से निकल नहीं सकते हो। अगर तुम में वो हिम्मत होगी तो तुम इसकी करंट के खिलाफ लड़ सकते हो, वो तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए। और मुझसे कहा क्या मैं तुमसे मोहब्बत दे सका तो तुम्हें मेरे से उम्मीद थी? मैंने कहा नहीं पापा, आप तो हर वक्त जेल में होते थे। और मैंने जब इनकी किताब पढ़ी तो मुझे वो याद आया कि कैसे इनकी, क्योंकि मेरी माँ मेरा बाप भी थी और मेरी माँ भी थी, मगर माँ की मोहब्बत इनको इतनी नहीं मिली जितनी होनी चाहिए थी। अफसोस इसी बात का है कि हमारी सियासत में कोई आराम नहीं है। 24 घंटे आप इस जमात में लगे रहते हैं और ये किताब साबित करती है। वो जमाना और ये जमाना बहुत फर्क है। उस जमाने में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, कम्युनल टेंशन था, मगर लीडर गांधी थे, जवाहर थे, जिन लोगों ने कुर्बानियां इस वतन के लिए दी थी वो थे, तो वो संभाल सके। तूफानों से गुजरी है ये जमात, मगर एक प्रिंसिपल पे गुजरी कि भाई हमने इस वतन को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सबके लिए करना है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ऊंचा नहीं, कोई धर्म नीचे नहीं।
वो जमाना था। आज तो हमें धर्मों पर बांटा जा रहा है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये दलित है, ये आदिवासी है। कहाँ पहुंच गया ये हिंदुस्तान? कभी सोचते हैं आप? मुझे ये बताइए कि क्या कॉमन है हम में? वो केरला से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से। न मेरा मौसम इनसे मिलता है, न मेरा खाना इनसे मिलता है, न मेरा कल्चर इनसे मिलता है, न मेरी ज़बान इनसे मिलती है। तो क्या है जो हमें इकट्ठा रखती है? एक उम्मीद कि हम इकट्ठे इस वतन को बना सकते हैं और इस वतन में इज्जत से जी सकते हैं। क्या हम चल सकते हैं रास्ते पे, कोई पूछेगा नहीं तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कहां से हो? वो गायब हो गया है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो एक बहुत भयानक दौर है। अल्लाह ही जानता है कि कब हम निकले से। और शशि से एक बात जरूर कहूंगा, शरारत के लिए खड़ा हुए नहीं जीते। शशि याद रखना, सितारों से जहां और भी हैं और तेरे इम्तिहान और भी हैं। जमात से साथ रखना, लीडर के साथ रहना, वो ये मुल्क चाहता है। अगर हम बिखर जाएं और फिर दूसरों से कहें नहीं तुम यूनाइटेड रहो, वो नहीं हो सकता। यूनाइटेड वी विल विन, divided we will lose. And that is the principle we should stand on. Truth is bitter, but truth has to be told. मैंने वो जमाना भी देखा है जहां लीडर को नहीं समझते थे, कानाफूसी करते थे, और जो कोठरी है, अल्लाह नजात दे इस कोठरी को, जहन्नम आए। कोठरी जो है वो बर्बाद करती है, लीडर को भी बर्बाद करती है और जमात को भी बर्बाद करती है। उनको अपना इंटरेस्ट होता है कि अगर दूसरा आ गया तो मेरा जो वो राब्ता है वो गायब हो जाएगा। जहन्नम इस राब्ते को क्या बताऊं आपको? इन्हें कहा नहीं आपसे, मैंने जो जख्म खाए हैं इसीलिए किताब लिखता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं वो लिखूंगा अल्लाह ही जाने क्या हो जाएगा। ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि जब मैंने जैल सिंह जी की किताब पढ़ी, जो मैंने उनसे बात की थी, उस किताब में नहीं थी। या तो उनके मरने के बाद डॉक्टरेट की गई। अगर हिस्ट्री को जिंदा रखना है तो सच बोलना जरूर मुश्किल है, मगर बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। नहीं, otherwise how do you tell the young that what this party has gone through, what this country has gone through? I remember Rajiv Gandhi's statement as Prime Minister to his party members in Bombay, now Mumbai, that unless this party falls to the ground, it can never rise again. And it has fallen to the bottom, and the time has come for it to rise. But all of you have to be united to see that happens. One individual cannot make this party. It is all who have to move and make this party and get this country out of the tragedy that we are facing today. Nation is getting divided. You are either with me or you're not at all Indian. You're a jihadi, you're a Pakistani, you're a Khalistani.
Who the hell are they to decide what you are? Who are they? You buy members of assembly to make governments and you call it a democracy? And you say this is a democracy? What sort of democracy is it? Democracy is when you're ready to face challenges and face truth in front of you. My father once told me, Nehru used to sit in the parliament all the time. Now prime ministers don't sit. And I'm sorry to tell you, Mrs. Gandhi also never sat in the parliament for long. I don't mean President Indira Gandhi. My father said, लोहिया साहब ऐसे हमले करते थे जवाहरलाल पे, मगर जवाहरलाल उफ नहीं करता था, चुपचाप सुनता था। क्या आज हम में वो मादा है सुनने का? आज तो सिर्फ हमें मक्खन लगाना है बस। जिसने मक्खन नहीं लगाया वो आउट। अब कितना मक्खन लगाएंगे साहब, मुझे बताइए। इतना मक्खन तो हम पैदा ही नहीं करते, वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाल ये पहुंच गया। ये किताब जरूर हमें रास्ता दिखाती है कि इन्होंने क्या किया, किस तरह वो मुश्किल वक्त देखा जब इंदिरा गांधी हार गई 77 में, किस तरह फिर इन्होंने उनका हाथ पकड़ा और वो चली, और किस तरह हिम्मत की, 80 में वापस आई। मगर फिर अल्लाह को मंजूर नहीं था कि वो बाकी चल सके। आपसे भी कहूंगा जो आज तशरीफ लाए, अगर उस हिंदुस्तान को बनाना है जो गांधी का ख्वाब था, जो उन शहीदों का ख्वाब था जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जवाहरलाल एक दिन 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग चढ़ाएगा लाल किले में, जहां पे ट्रायल की गई थी शाहनवाज खान और उन सब की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नारा मारा था। मगर कुर्बानी दी, किस लिए दी? कि ये देश हम सब का है। वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, हर एक के लिए ये देश है। उस देश को बनाने के लिए आपने कुर्बानियां देनी है। अगर कुर्बानियां नहीं दोगे तो इस देश को बना नहीं सकोगे, नहीं बना सकोगे। ये किताब दिखाती है इनकी स्ट्रगल। मगर इनसे ये जरूर कहूंगा, आप रिटायर हो ही नहीं सकते कभी। अगर ये समझती हैं, और मैं आपसे ये कहूं, ये समझे कि कोई 90 साल का है तो वो बिल्कुल बेकार है, गलत फहमी है आपको। एज इज इन योर माइंड। दिल मेरी तरह जवान होना चाहिए। और जब तक आपका दिल जवान है और आप ये सोच सकते हैं कि मैं किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूं और मुझे वो मकसद पूरा करना है, तब तक मैं सोने के लिए तैयार नहीं हूं। That should be the crux of the things. And to all of us I say, never, never, never feel that we have lost. उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। उस उम्मीद को कभी मत छोड़िए। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, किस देश के लिए? जिसमें हम सब इकट्ठे रहेंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, जिएंगे, भूखे रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे। उस देश को बनाना है और इंशाअल्लाह मैं मरने से पहले उस देश को जरूर देखूंगा। ये मेरा तहिया है। That is the fight we have to fight.
It is our nation. It's not somebody else's nation. It's every one of us who belong to this nation. It is that we should have in our mind, in our hearts, in our every single cell of our body. That this is my nation. And I have to make it the way it has to be made for everyone, democratic, socialist, secular, and above all, love for everyone, whether you're rich, poor, or whatever. Allah करे कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं कि वो दिन देख सकें जल्दी से, और अल्लाह करे कि फिर से कांग्रेस का उरूज हो। अगर क्या मैंने बहुत धक्के खाए हैं इस जमात से, अल्लाह रहम करो, मेरे बाप ने बहुत जेल भी देखी है, मगर उसके बाद भी मुझे इस जमात से उम्मीद है कि ये जमात हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है। मगर हम सबको एक दूसरे से हाथ मिलाना है और ये बैक बाइटिंग छोड़ देनी है, उसको गिराओ, इसको उठाओ, इसको यहाँ से करो। अरे यार, अल्लाह देने वाला है, जिस दिन वो नहीं देगा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी रस्सी थामे रखो तो इंशाअल्लाह नदियाँ पार हो जाएंगे। Thank you, Dr. मैं आपको मुबारक करता हूँ। सॉरी फॉर सो मच ऑफ टाइम दैट आई हैव टेकन। और मैंने सोचा मैं दिल के ख्याल आपके सामने रखूँ और शशि से ही कहूँगा, शशि, be a strong congressman and let's see South and North really in one form and one voice stand together for country. God bless you all. Dr. Abdullah speaking the truth there in his inimitable style. From there, I just want to perhaps Sushil Shinde ji, our former Home Minister, veteran Congress leader, and every time there is some kind of post going, major post going in the Congress, one of the names and contenders is always Sushil Kumar Shinde. So he's of course always the favorite for whatever post is going. So Shinde Saab, I wondered if in your speech, if you could respond to some of the things that Farooq Saab referred to, the need for opposition unity and how important that is for the Congress or anybody in the opposition to do well. श्रद्धेय मोहसिना जी, श्रद्धेय फारूक अब्दुल्ला जी, श्रद्धेय शिवराज जी, श्रद्धेय थरूर जी, श्रद्धेय हमारे अय्यर जी, श्री किडवाई जी और सुनीता जी, देवी और सज्जनों, फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे इस देश के एक ऐसे प्रतीक है जो हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। और इसलिए हम लोग महाराष्ट्र से भी होते हैं तो उनको हमेशा चाहते हैं कि वो हमारे इधर आए, कुछ बोले और इस देश के तरक्की के लिए कुछ मार्गदर्शन करें। वैसा ही आज उन्होंने किया। हमारी मोहसिना जी बड़ी बहन इस किताब में 1960 से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में उन्होंने लिखा है। और वो जमाना था कि कांग्रेस की तभी ज्यादा स्प्लिट नहीं थी। कांग्रेस का एक विचार था पंडित जी और पूरा देश कांग्रेस के सिवाय कुछ नहीं चाहता था। लेकिन इन्होंने इस किताब में उत्तर प्रदेश की सब स्थिति बताई, एक हिस्ट्री बताई, पॉलिटिकल हिस्ट्री, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की हिस्ट्री बताई, देश की हिस्ट्री बताई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी कांग्रेस उस वक्त कैसी थी
और आज कैसी थी, आपने जिक्र किया उसका, और बीच में क्या स्थिति थी ये भी उसमें लिखा है। एक इसमें प्रचार में इंदिरा जी और मोहसिना जी गए थी, तब उन दिनों भी उनको सर्किट हाउस भी नहीं मिला, तीनों रूम लॉक किए थे, और वो सिक्योरिटी वाला बोलता था कि वहां लोग रह रहे हैं तो हम नहीं दे सकते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा वैसा मोहसिना जी शांत रहते हुए काम निकाल लेती है, वैसा बाद में तीनों भी रूम वो खाली थे, और फिर इंदिरा जी वहां आई, थोड़ा सा विश्राम किया दोपहर में। साफ किया और साफ भी किया। आपने यानी पढ़ा है आपने किताब, ये इसका नाम तो इंदिरा जी क्या थी ये भी बताया है। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं नया नया जनरल सेक्रेटरी बन के आया था नरसिंह राव जी के वक्त, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं महाराष्ट्र में फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इस्तीफा दे के मुझे यहाँ बुलाया था, और मैं पार्टी के लिए छोड़ो सत्ता बोल के आया था यहाँ। तो उन दिनों जब ये नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुए और पार्टी का एक अधिवेशन था, मुझे याद है कि वो 3-4 बड़े नेता देश के वो हमारे सम्मेलन में, कांग्रेस के सम्मेलन के सामने किडवाई जी, नटवरलाल जी और भी कई लोग थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी कांग्रेस सही कांग्रेस है, और उसके लिए वो स्टेज धरना कर रहे थे। लेकिन बाद में ये छोटे लोग थे, लेकिन कांग्रेस को उनका स्वीकार करना पड़ा, और इन सबको कांग्रेस में लेना पड़ा, और एक फिर वही नटवर सिंह यहाँ मंत्री बने, वही एनडी तिवारी जी बने, आप भी बनी। जब भी वर्किंग कमेटी में चर्चा होती थी, तब मोहसिना जी बिना डरते हुए किसी को अपने दिल की बात वहां रखती थी, चाहे इस देश की सिक्योरिटी की हो, चाहे इस देश की महिला की सिक्योरिटी हो, या चाहे दलितों की सिक्योरिटी हो। ये बहुत कठिन बात है। कोई नेता है तो अपने ही समाज की बात करता है, बट ये सब लोगों की बात वहां वो रखती थी और वो सुनते थे। बाद में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी आई पिक्चर में, और जिस तरह का इस देश में राजनीति शुरू हो गई, एक नया जीवन लोगों को देखने को मिला। वो 10 साल जबरदस्त थे। जो कल की इकोनॉमी कैसी थी वो पलटवार कर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, और बिना बोले, डॉक्टर साहब का एक नेचर है और था भी कि बिना बोले जो करते थे, दुनिया को इंटरनेशनल अफेयर्स में उनको मान्यता थी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, वहां से जब आता था तभी इंडिया के लोग बोलते थे, अरे हाँ ये डॉक्टर साहब ने कुछ किया है। हमारे को जल्द नहीं आता था, लेकिन दूसरे ने जब बोलते हैं तभी ये बात होती है। तो इतनी अच्छी इकोनॉमी उन्होंने संभाली, तो हम बड़े नजदीक थे, जहां
भी हमारे को जाओ बोलते तो जाते थे पार्टी की। और कई ऐसी चीजें भी हैं कि जहां हम नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी के वजह से जब डायरेक्शन आ गई तो हम जी हुजूर बोल के वो काम भी कर देते थे। तो ऐसी एक हमारी बहन जिन्होंने इस किताब में बहुत कुछ बोला है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आपके उनके जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने कितना इनको इनकरेज किया है। वो एक इंसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर 3 मूर्ति पे लेके गए और वो बड़ा डिटेल में किया है, वो कैसे पंडित जी आई, इंदिरा जी वैसे आई, उनके साथ बैठी, तभी चाय भी पिलाते थे और बहुत अच्छी चाय। तो वो भी लिखा है। तो ये जब पढ़ते थे तभी याद आता था कि क्या दिन होंगे वो। आज तो हमारे को रिस्ट्रिक्शन है सब जगह, डर है, अल्लाह रहम करे। डर है सिक्योरिटी का है, डर है क्रिटिसिज्म का, डर है हमारे को एक दूसरे पे गैर विश्वास का। तो फारूक अब्दुल्ला साहब तो जोर से बोलते हैं तो मिसमराइज कर देते हैं। मैं बहुत साल से उनके महाराष्ट्र में था, तभी जेके बैंक का इनॉग्रेशन करने के लिए गया था। तभी फाइनेंस मिनिस्टर था महाराष्ट्र में। मैं तो इनके पिताजी से भी मिला हूं, तो क्या बताऊं, वो रजनी पटेल के बड़े दोस्त थे वो। ठीक है ना, तो मेरी भी हिस्ट्री ठीक है। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी कि पहली बार मैं और मेरी मिसेस कश्मीर गए थे, तो आपके पिताजी ने इतना अच्छा हमारा स्वागत किया, गाड़ियाँ दे दी, और आप जहाँ रहते थे उसके बाजू का बंगला हमारे को दे दिया वहाँ। वो क्या नाम थे? कश्मीरियों की आदत है मेहमान नवाजी। तो पूरा देश सीखता है, देखता है। तो मैं इसलिए ये याद करवाया कि कश्मीरी की ये आदत है, और आज भी है। कुछ अन्याय भी हो गया तो भी आज सहन करने की ताकत है, लेकिन कब क्या होगा पता नहीं है। मोहसिना जी, आप एक किताब में सोनिया जी के बारे में भी लिखा है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि सोनिया गांधी जी कितनी चाहती हैं। उस घर के दोनों बच्चे भी कितने चाहते थे, तभी छोटे थे, तभी से मैं देखता हूं। तो फैमिली का जो रिश्ता है वो भी उन्होंने यहां बताया है। और एक अच्छी किताब, मैं सुनीता जी उठने के पहले मैं मेरा भाषण कंप्लीट कर दूं कि एक अच्छी किताब लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कांग्रेस की हिस्ट्री उन जमाने में क्या थी वो पढ़ेंगे, वो जहाँ तक अभी नए चेंजेस है उत्तर प्रदेश में ये भी पढ़ेंगे, और भारत के राजनीति में किस तरह उत्तर प्रदेश से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विजन रखा था, इंदिरा जी ने उसे आगे लाया, और राजीव जी और सोनिया गांधी जी ने उसको, शास्त्री जी का भी बयान, शास्त्री जी का भी बयान है। तो ये मैंने भी पढ़ा है, बड़े गौर से पढ़ा है। तो ये भी पढ़ते हैं, बहुत किताबें हम मिलके रिलीज किए हैं। तो ये हमारे अगले पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन होगा, और राजनेता ने किस तरह रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट हिस्ट्री के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इसलिए मैं
हमारे आपा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो जल्दी आपने ये डिक्टेट किया, किडवाई जी, दोनों भी किडवाई है, रशीद भाई भी, तो एक अच्छा इसमें वक्तव्य किया है अपने, और पूरे पूरे देश के लिए एक संदेश जाएगा कि हम इस तरह क्या करना चाहिए नया, और कल क्या बात थी, यही संदेश हमें लेके जाना है। आपने फारूक जी, आपने बहुत अच्छा भाषण किया, वो इंथूज किया आपने, तो आप तो जवान हैं, बहुत जवान, तो इंथूज किया, और हमारे में भी जरा जोर आ गया। बिल्कुल। धन्यवाद आपको मोहसिना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Now I invite our final panelist, Manish Shankar Iyer, especially if you would like to address some of the comments that Dr. Abdullah made about the need for not having things like coterie. That's something that has people have always commented is one of the major problems with your party, the Congress party. So if you want to address that. What is मोहसिना जी, मेरे मंच पर बैठे हुए मेरे साथीगण, मैं जब यहाँ पहुँचा तो सुनने के लिए पहुँचा। अचानक मुझको बताया गया कि मुझको भी 2 शब्द बोलने का है, तो इस पुस्तक को पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला है, लेकिन हालांकि मैं इस पुस्तक को तो ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन आज के दिन इस वक्त पर मैं इस किताब से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं आपसे वाकिफ़ हूँ। और आपका नाम मैंने पहले सुना, और शायद बहुत से लोग होंगे यहाँ जिन्होंने कि आपका नाम पहला सुना होगा। तो उस चमत्कार दिन 1978 में जबकि बताया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार मोहसिना किदवाई जी आजमगढ़ में जीत चुके हैं, ये पहला कांग्रेस जीत था 1977 के त्रासदी के पश्चात, और तब लगा कि शायद ये पार्टी जो बहुत ही अंधेर में स्थिति में थी कि वो पुनर्जीवित हो सकती है। तो आज इस पर मैं जोर लगा रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन कांग्रेस का भविष्य ज़रा अंधेर में लग रहा है, लेकिन मोहसिना जी जैसे सदस्य हमारे पार्टी में हों तो तब पुनर्जीवित होने का पूरा संभावना है। उन्होंने रास्ता दिखाया हमें, और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका नकल निकालें कि सन 2024 में या उससे पहले हम दिखाएं कि 1978 का जो चमत्कार रहा वो हम फिर दर्शा सकते हैं। तो जो आप और आपकी ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है, उसके लिए मैं ख़ास आपको धन्यवाद बताना चाहता हूँ। उस दिन 1978 में मुझको कतई पता नहीं था कि एक दिन आएगा, और वो भी चंद रोज़ में, जबकि मुझे मोहसिना जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तकरीबन 88 या 79 की बात है ये, कि मैं राजीव जी के दफ्तर में एक जॉइंट सेक्रेटरी का काम कर रहा था, और पंचायती राज पर बहुत काम हो रहा था। तो एक मीटिंग हुई मुख्यमंत्रियों का, और उसमें नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि देखिए, आने वाले 25 साल के अंदर भारत गांव में रहना छोड़ देगा, और कि बहुत लोग शहरी बन जाएंगे। तो ये जो पंचायती राज आप ग्रामीण इलाकों के लिए तैयार कर रहे हो, इसको आपको शहरी इलाकों में भी लाने की आवश्यकता है। तो टाइम तो बहुत कम था, 2 ही महीने का समय था,
और उस 2 महीने के अंदर हमें पंचायती राज को शहरी इलाकों में लाने की जिम्मेवारी पड़ी और मुझे तकरीबन प्रतिदिन मोहसिना जी के दफ्तर में जाना पड़ा, मतलब उनके मंत्रालय में जाना पड़ा और ये काम करवाना पड़ा। और गज़ब की बात है कि आपके नेतृत्व में कुल मिलाकर 2 महीने के अंदर वो कानून तैयार किया गया, वो संविधान का संशोधन करने का कानून तैयार किया गया, जिसके आधार पर अब आज के दिन शहरी इलाकों में भी आम व्यक्ति को वोट डालने का और अपना सुशासन करवाने का मौका मिला है। तो ये है एक देन मोहसिना जी का जिसका जिक्र अब तक नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि उस पर मैं रोशनी डालूं और मैं बहुत ही आभार हूँ मोहसिना जी का कि उन्होंने अपना वक्त भी दिया, अपने दिमाग भी दिखाए और अपने आशीर्वाद भी हमें दिए, हम जो बाबू लोग काम कर रहे थे, कि हम इसको तैयार करें। और आज के दिन हमारे देश के संविधान में वो कानून लिखा हुआ है। और जबकि लोग कहते हैं कि संविधान का कदर करना चाहिए, तो इसका एक मतलब बनता है कि जो कानून मोहसिना जी ने तैयार किया और पार्लियामेंट में पेश किया, उसका भी कदर करना चाहिए। आप हमारे संविधान के साथ जुड़ चुके हैं। फिर हमारी दोस्ती बढ़ी, क्योंकि सेक्युलरिज्म के कोई मसीहा हों तो वो हैं मोहसिना किदवाई। और मुझको अक्सर मौके मिले उनके साथ मंच पर बैठने का, उनके बाद 2-4 शब्द बोलने का, और देखा कि किस हद तक इस सैद्धांतिक विषय को, ये जो बुनियादी सवाल है हमारे देश के बारे में, उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैडम किदवाई अपना योगदान दे रही थी। उनके इर्द गिर्द तो शायद दूसरे मज़हबों के लोग हुए होंगे और उनके इर्द गिर्द अलग अलग भाषा बोलने के लोग भी होंगे। तो उन्होंने दिखाया कि विविधता में से ही एकता बनता है। यदि आप सबको एक रूप देने का प्रयास करें तो तब कतई कोई एकता नहीं बन सकती है, बिखर जाएंगे। और उनकी जीवन, और हालांकि मैंने ये किताब नहीं पढ़ा है, मुझको पूरा विश्वास है कि किताब को पढ़ने पर हमें पता लग जाएगा कि किस हद तक इस विविधता को हमें कायम रखना है ताकि हमारी एकता कायम रहे। ये है सबसे बड़ा सबक जो कि मैंने मोहसिना जी से सीखा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि निजी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको कि हमें मंत्रियों से पूछना पड़ता है, तो मुझको भी 1-2 चीज़ मोहसिना जी से पूछना पड़ा मेरे परिवार के कल्याण के लिए, और वहीं के वहीं मौके पर ही उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि मैं जो यहाँ सुनने आया था, मुझको रशीद भाई ने मंच पर बुलाया और कहा कि आप भी बताइए मोहसिना जी के बारे में। और मोहसिना जी ने एक और चीज़ दिखाया है कि एक वफादार कांग्रेसिया होते वक्त आप क्रांतिकारी भी बन सकते हो, क्योंकि वो हमेशा जो लाइन दिया जाता है उन लोगों के तरफ से जिनका जिक्र फारूक भाई ने किया, जबकि उन्होंने कोटरी की बात की, ये अक्सर जो लाइन निकलता है वो नेतृत्व का नहीं है, वो कोटरी का है, और अपने को बचाने के लिए वो ये लाइन निकालते हैं।
और कम से कम 2 बार मोहसिना जी ने वरिष्ठ होने के बावजूद ये दिखाया है कि हम लाइन से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी वफादारी पर किसी प्रकार का शक नहीं हो सकता। एक तो तब जबकि उन्होंने सोचा कि नरसिम्हा राव जी गलत रास्ते पर निकल रहे हैं, और तब नटवर सिंह, एन.डी. तिवारी वगैरह से जुड़कर उन्होंने बगावत की, लेकिन बगावत कांग्रेस के हित में। और जैसा कि बदलाव आया वैसे के वैसे वो कांग्रेस में वापस आए और उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। और दूसरी बार जब लाइन के बावजूद उन्होंने हस्ताक्षर लगाई हमारे शशि थरूर साहब के नॉमिनेशन पेपर्स पर, मुझको वो श्रेय नहीं मिला, क्योंकि शशि ने किसी को भेजा ये पता करवाने के लिए कि मेरा नाम पटियल में है या नहीं, और बिल्कुल गलत तरीके से किसी ने उनसे बताया कि ये मणिशंकर का नाम तो है ही नहीं। तो उन्होंने अफसास जताते हुए मुझको लिखा कि आपका नाम तो लिस्ट में ही नहीं है, तो नहीं तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म में आपका भी हस्ताक्षर ले लेता। तो मैं चौंक पड़ा और बहुत मुझको इधर उधर घूमना पड़ा अपना ही नाम लिस्ट में मिलवाने के लिए, जहाँ की आप प्रचार कर रहे थे। और प्रचार उन्होंने बहुत सही तरीके से किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर चुनाव हो तो किसी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन से सोच, कौन से चिंतन से पार्टी का सेवा बन सकता है। और मुझको लगता है कि वो पार्टी में बदलाव लाने का एक प्रतीक बन गए हैं कि ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ चेंज। एट द सेम टाइम हमारे खरगे साहब जो हैं, ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। और अब जबकि चुनाव हो चुके हैं, यदि इन दोनों का मिलन हो जाए तो तब कॉन्टीन्यूटी भी होगी हमारी पार्टी में और चेंज भी आ जाएगा। तो ऐसा हुआ तो इसका मतलब बनेगा कि इस चुनाव में कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। यदि कोई जीता है वो पार्टी जीती है, और यदि कोई किसी ने शिकस्त दी किसी और को, सोनिया जी और हमारा नेतृत्व दिया। एक चीज़ इस सिलसिले में मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कांग्रेस में पूरे 100 साल से एक विरासत रहा है कि लीडरशिप एक चीज़ होती है, नेतृत्व एक चीज़ होती है, और प्रेसिडेंट दूसरी चीज़ होती है। अब देखिए 1919 से लेकर 1948 तक पूरे 30 साल महात्मा गांधी ही हमारे पार्टी के लीडर थे, इसमें किसी के मन में कोई शक नहीं था। और अक्सर इस दौरान महात्मा गांधी हमारे पार्टी के प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे, तब भी उनका नेतृत्व समझाया जाता था। और प्रेसिडेंट हर साल बदलते रहते थे, जब तक कि मौलाना आज़ाद आए और वो 5 साल रहे, लेकिन हर साल बदलते रहते थे। लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया था कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कठपुतली है और कि महात्मा गांधी जो है उस कठपुतली का खेल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात अभी आने लगी है। अब देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जब वो प्रधानमंत्री बने और महात्मा गांधी का देहांत हुआ, तो तब कौन बना कांग्रेस का लीडर? जवाहरलाल नहीं बने। लेकिन जवाहरलाल तो कभी कभी थोड़ा बहुत उनको प्रेसिडेंट बनने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन UN धेबर जैसे महानुभाव वो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। और जबकि बहुत बड़ा मतभेद आता है लीडर और प्रेसिडेंट के बीच में, तब पार्टी फूट जाती है। मैं कोई 28 साल का था जबकि मैंने देखा निजलिंगप्पा का टक्कर इंदिरा गांधी के साथ, और उसका नतीजा क्या हुआ कि पार्टी 2 में बट गई।
जो मीडिया लोग मुझको भी फ़ोन करते हैं और शायद आपको भी फ़ोन करते होंगे और पूछते हैं कि ये कौन सा कठपुतली बनेगा, ये सब बिल्कुल बकवास है। हमें समझौता होनी चाहिए प्रेसिडेंट और लीडरशिप में, ताकि पार्टी जो है वो शक्तिशाली बने। और इसको शक्तिशाली बनाने में मोहसिना किदवाई जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। पिछले 6 दशक से वो हमारी पार्टी के लीडर रही हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, लेकिन हमेशा सच के पक्ष में। और ऐसे महानुभव की हमारी बड़ी ज़रूरत है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके उदाहरण को लेकर नई पीढ़ी जो उभर कर आ रही है वो भी मोहसिना किडवाई के पथ पर चलेगी और बस संदर्भवाद तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को नहीं करेगी। धन्यवाद मोहसिना जी कि मुझे ये मौका मिला। और रशीद भाई, थैंक यू वेरी मच। मुझको तो वहाँ बैठना था और आपने मुझे चोरी करके लिया है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। Now to give the vote of thanks. Thank you, Sunetra. It's been a memorable evening, and I want to, on behalf of Begum Mohsina Kidwai Sahiba, I want to thank each and every guest, distinguished members of the panel, Mrs. Gursharan Kaur Sahiba, to have made special efforts to be here with us, and each and every person who's there in this hall. I think in recognition of, I won't take time at all, I think in recognition of Begum Mohsina Kidwai's selfless services and a very distinguished track record over 6 decades, I would request all of you to please stand up and give her a standing ovation with a round of applause. Thank you, HarperCollins. Thank you, every member of the AICC staff. Thank you very much. Please do buy a copy of book because I think it's worth reading every bit of it. Thank you. Mohsina ji, you sign my copy.